रोड एक्सीडेंट का सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है। रोड रेज एक ऐसी समस्या है, मानसिक समस्या है, जहाँ पे इंसान रोड पे आगे निकलने की चाह में सही गलत सब भूल जाता है। सो इसको एक साइकोसोमेटिक डिसीज़ भी कहा जा सकता है। हालांकि एलोपैथी में इन साइकोसोमेटिक डिसीज़ेस को क्योर करने के ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड है, बट एक अल्टरनेटिव मेडिसिन ब्रांच है जिसको हम होम्योपैथी बोलते हैं। वहाँ पे इन्हीं सब सिचुएशंस पे काम किया जाता है, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स पे काम किया जाता है। आज के हमारे गेस्ट एक जाने माने होम्योपैथी डॉक्टर एंड प्रैक्टिशनर है, डॉक्टर जनक सिंधु, जो काफ़ी सालों से इन साइकोसोमेटिक डिसीज़ पर रिसर्च कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। चलिए आज इनसे जानते हैं कि कैसे पुअर सिविक सेंस और रोड रेज जैसी समस्याओं पे होम्योपैथी मेडिसिन काम कर सकती है और इसका हेतु किस तरीके से हम समाज को एक अच्छा समाज बना सकते हैं, स्ट्रेस फ्री समाज बना सकते हैं। Majorly two which I am facing in my practice. First is it works very late. It takes too time, but it's not true because always medicine works on the basis of your nature of disease. If you are having acute ailment, then medicine is definitely going to work in minute or in hour. But if you are having chronic complaint, then definitely it's going to take time because the nature of disease is such chronicity. A 26-year-old male was in coma since more than 3 months and in complete coma post craniectomy. He was in complete coma in Ahmedabad only. Patient has came from Bombay to Ahmedabad for surgery, and post surgery that fellow didn't come back. And with intervention of my homeopathic medicine, with detailed history what parents had given to me, we had analysis it, and within 48 hours the patient has started improving, and just last week that fellow has came to my clinic by walking. We welcome you, Dr. Janak Sindhu, to our Business and Beyond podcast. Thank you. So, डॉक्टर बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ पहले कि एलोपैथी प्रैक्टिस और होम्योपैथी प्रैक्टिस दोनों में कितना अंतर है, बिकॉज दिस फॉर द व्यूअर्स राइट नाउ। आप उनको बहुत सरल भाषा में अगर समझा सके कि एलोपैथी प्रैक्टिस और होम्योपैथी में डिफरेंस क्या है। एलोपैथिक एंड होम्योपैथी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो टोटली डिफरेंट है, ठीक है। एलोपैथी यूजुअली वर्क्स ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ एनी सिम्टम्स, like we call it painkiller, anti-hypertensive, anti-diabetic. So it's not working with the law of nature. While homeopathy का जो basic principle है, it's a similibus curantur, and it's totally rely on nature's law of cure. So the basic principle of allopathy and homeopathy is mode of treatment is very totally different. There is no any similarity between it. But yeah, if in many cases if we go together to treat the one complaint or condition, then definitely many patient gets double advantage of it, because in acute emergency many time allopathy controls the symptoms, okay, and it gives time to take the action of medicine. So Understood. The mode of action is totally different, but together we can work. सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज लोग फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों में इश्यूज फेस कर रहे हैं, राइट। सो आपको क्या लगता है कि इसमें एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन और नॉइस पॉल्यूशन कितने हद तक रिस्पॉन्सिबल है टू डेवलप द मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंग टू यू? Big role, because just recently I faced before few minutes. Okay. I had planned as per Google Map within 15 minutes I will reach over here, but it took almost 30 minutes. So double the time which I had been predicted. And in between I was looking के कितना मतलब noise pollution है, कितना air pollution है, because जो भी vehicle में से जो smoke निकलता है, it's not 2.5 mm micron polluting particles, but it's less than 0.1 micron air polluting particles. And how does it affect? तो जैसे भी हम इनहेल करते हैं, मतलब ठीक है, तो इनहेल करने से स्मॉल जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं इट इजिली गेट्स पेनिट्रेटेड थ्रू नोज टू थ्रोट टू द अल्वियोलाई ऑफ लंग्स, और लंग की अल्वियोलाई से वो ट्रांसपोर्ट होकर इवन ब्लड में भी ट्रैवल करते हैं. Okay. तो एट फिजिकल लेवल it doesn't affect only the nostril or only the pharynx or larynx or alveoli,
but through alveoli it transport to the blood vessels, and blood vessels, that means it travels through the whole body. इवन थ्रू नॉस्ट्रिल ऑल्फैक्टरी नर्व के थ्रू भी बहुत लेस देन 0.01 माइक्रोन वाले जो भी पार्टिकल्स होते हैं, इट गेट एब्जॉर्ब थ्रू द ऑल्फैक्टरी नर्व एंड इट रीचेस टू द ब्रेन. ओके, ठीक है. तो फिजिकल और मेंटल, तो एज पर एयर पोल्यूशन इट डायरेक्टली इट गेट अफेक्टेड लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्रेन. एंड एट मेंटल लेवल देयर इज एंग्जाइटी, मूड स्विंगिंग, पैनिक अटैक are very common, and even somehow we will say depressive disorder. how Because depressive disorder is connected to the pollution? To the pollution, to the travel time, and to the oxidative state, because when lot many air particles get blocked in the lungs and it transported to the bloodstream, then deoxidated state creates. And Okay. deoxidated state, that means whole your system is getting under stress, under crisis. So it's not only about physical, but mind and body both get affected, and that chronic exposure of that particular things will lead to mental disorder also. सर, एक मेरे पास डेटा है डॉक्टर कि ग्लोबल हेल्थ रिपोर्ट में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू एयर पॉल्यूशन हर साल लगभग 7 मिलियन प्रीमेच्योर डेथ्स हो जाती है. सो आप उस पर क्या कमेंट करना चाहेंगे? वो प्रीमेच्योर डेथ क्यों होती है बिकॉज ऑफ द एयर Yes, पोल्यूशन? yes, yes. How it Suppose if works? you think one pregnant lady is getting exposure to such kind of environment, then how her lungs will be working, how her blood is working. It's not only about premature birth, but there are chances of miscarriage, there are chances of preterm born, there are chances of low birth weight are very common, which are connected with the air pollution. एयर पॉल्यूशन. ओके. So in general, we see in ad like smoking and tobacco and alcohol consumption during pregnancy is prohibited, or it's very dangerous for the fetus. The same way, such air particles are affecting to the human body. ओके. And newborn baby is it's a very different angle, but it's not as much strong as we are. It's a very fragile, very sensitive kid who is taking, growing in the womb of mother. So any minor changes in the physical aspect of mother is directly going to perceive that child, and child is indirectly or directly getting affected. सो आपके क्लिनिक में क्या ऐसे कोई केसेस आते हैं जहाँ पे आपने देखा हो कि ये डिसीज पर्टिकुलरली इज बिकॉज ऑफ द एयर एंड नॉइज पोल्यूशन? Yes, just recently I had faced one patient who lost his hearing. So that fellow was sitting in one puja, and the loudspeaker was just side of his left ear, and by exposing that loud noise for more than 30 minutes, that fellow has completely lost his hearing. Completely lost. Completely lost. Oh my. Because you know how much normal voice is advisable to hear for human. So it's around 60 decibel. Upper limit is 70 decibel. Okay. Yes, true. Just recently I faced on road at the highway and on signal, everybody was honking, but aage signal is blocked, then how would forward person is can you going go to go ahead. But people had not that sense. And the decibel sound, if I can predict, that was around 95 to 100. Wow. So this comes to a conclusion जहाँ पे मेरे मैक्सिमम गेस्ट डॉक्टर ये बोलते हैं कि हमारे अंदर सिविक सेंस, right, Yes, which is very- lacking, and there is a road rage. Yes. There is a rage on the road. Rage on the road. right. So ये दोनों चीज़ें, how this is mentally affecting the person who is expressing this thing and the person who is a victim to this. Yes. See, like passive smoking is affecting other. Yes. The same way, such kind of behavior, such kind of nuisance, such kind of noise is definitely not only the person who is doing it, he himself is definitely going to affect it. True. But the surrounding people who are standing or who are moving around there, directly they are going to affect. So आपने अपने पेशेंट्स में ऐसे सिम्टम्स ऑब्जर्व किए हैं जिनमें you generally see the rage in them, right? They are too much reactive, too much of rage in them to situations, or maybe any simple situation जहाँ पे आपने देखा हो कि इनका डिसीज डेवलप हुआ है बिकॉज ऑफ द रेज. Oh, that's my routine work. Don't take my name. Don't take my name. No. But usually in our practice, what we are considering 3 aspects of life, basically, mind, body, and soul.
See, the whole concept of homeopathy is individualization, and we can make individualization on the basis of these three aspects. So, what is perception of mind, what is soul's manifestation, and what is the disposition of body. Okay. So, human nature and body is not human mind and body is not a different entity. Both are very closely connected, synchronized with each other. Okay. And if you go through any literature of epigenetics, then what the mind perceives, the body exactly absorbs that thing, and later on it manifests in form of disease. So I can say in simple words, what you are thinking is actually your becoming. Yes, definitely. What you will think, that you will become it. So, and how? But I'm always try to understand why this fellow is doing such kind of things. Why he's behaving in such way? Because there is not always his fault. Because many things he has brought up in his DNA from his ancestors. What the mother has faced, what the role of father, how father was behaving in family, elder parents were behaving in family, what the mother has perceived, and same thing is going to pass on to the kids. So not always kids are at fault. Sometimes surrounding family environment, in which environment that fellow is brought up, that plays a big role, and by understanding it we can help him. So do you think the accidents which we have seen where teenagers have crushed over the people on the roads, pedestrians and all, बहुत सारे accidents हमने देखे हैं जहाँ पे बच्चे इंटॉक्सिकेटेड नहीं पाए गए उनके, जैसे पुणे में एक एक्सीडेंट हुआ अभी 21 इयर्स गाय, उसने फेरारी से एक बाइकर को उड़ा दिया. अहमदाबाद में भी एक एक्सीडेंट ऐसा हुआ है, राइट, तो जिसमें इंटॉक्सिकेटेड नहीं थे बट आउट ऑफ रेज दे वर ड्राइविंग ऑन अ वेरी हाई स्पीड और मे बी दे हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग. सो इसमें वो रोड रेज जो उनका था, उसमें आपको लगता है कि उनके डीएनए से ये प्रॉब्लम आ सकता है? डेफिनेटली, बिकॉज रेज competition always comes from the DNA and early childhood emotional trauma. So ये क्यों हो रहा है कि इंडिया में कंपैरेटिवली ये रेज अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है कंपेयर टू अदर कंट्रीज? बाहर की आप कंट्रीज में देखें ना, द पीपल हैव काम बिहेवियर्स, बट व्हेन यू सी द इंडिया, सिविक सेंस इज पुअर, दे फील लाइक डैमेजिंग द पब्लिक प्रॉपर्टीज आर राइट. हम यहाँ पे गार्बेज थ्रो कर सकते हैं, हम यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकते हैं. उनको लगता है कि ये हमारा हक है ये करना. रोड पे रेज दिखाना हमारा हक है, हॉकिंग करना हमारा, कि ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है इंडिया में. ऑलवेज कम्स फ्रॉम द फैमिली. Okay. Because certain things only government can't help it out. Yes. Schools are limited. True. Schools have also very limited hours to educate the children. Okay, but how the parents and family members are behaving when kids were in your car, he always learns and observe the things from there. So early childhood में यदि बच्चे ने ऐसा कुछ देखा है तो डेफिनेटली एल्डर होके वो वही सेम पैटर्न बिहेव करने वाला है. तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से सबसे पहले आती है पेरेंट्स की. And whenever at very young age kids do something like this and parents observe it or get notice of it, they must have to stop it that point only. Because बच्चा 18-21 ईयर का हो जाएगा, उसके बाद आपका कंट्रोल नहीं है. तो दिस ऑल सिविक सेंस हैव टू लर्न along with the school at home also. और इसमें पेरेंटिंग का ही सबसे बड़ा रोल होता है. बट अगर इस रोड रेज के साथ वी आर लिविंग डे टू डे और हम आज इसी रोड रेज और इसी सिविक सेंस के अंदर फ्रस्ट्रेशंस आर बिल्डिंग ऑन बहुत ज़्यादा, तो ये कौन से डिसीजेज में कल कन्वर्ट हो सकता है आपको लगता है? हाउ मेनी डिसीजेज आर देयर जो आपको लगता है कि ये कंपल्सरी रेज और दैट बिहेवियर ऑफ शोइंग अग्रेशन उसकी वजह से ट्रांसफॉर्म हुए हैं? तो मेरा तो बहुत बड़ा स्टडी रहा है जर्मनी मेडिसिन के अकॉर्डिंग. सो सिंपली व्हाट आई टेल माय पेशेंट टू सी, ऑलवेज ऑब्जर्व द नेचर, हाउ नेचर इज बिहेविंग. सपोज मुझे यहाँ कोई इंजरी होती है तो मैं नेक्स्ट सेल इज नॉट टेलिंग दैट आई एम नॉट गोइंग टू हेल्प यू. नेक्स्ट सेल जो है वो इमीडिएटली ब्लड फ्लो बढ़ाएगा, ब्लड फ्लो नहीं बढ़ा पाएगा तो वो फाइब्रिन टिश्यू रिलीज करके भी उसको हील कर देगा. तो लविंग, केयरिंग एंड शेयरिंग इज अ पार्ट ऑफ नेचर. और जब ये माइंडसेट हमारे मन में नहीं रहता है, इट्स वेरी फेमस बुक, वेरी प्रिसाइजली रिटन, कि सपोज आई एम हेटिंग समवन फ्रॉम माई माइंड, देन माई बॉडी सेल इज डायरेक्टली परसीविंग दैट हेट टू इट्स पर्सनली. और वो एक सेल दूसरे सेल को हेट करना स्टार्ट करता है, एंड दैट वी कॉल इट ऑटोइम्यून डिजीज. तो ऑटोइम्यून डिजीज आर नॉट ऑलवेज कम्स फ्रॉम द आउटर साइड. देयर आर वेरी स्टडी कि कोई वायरल इन्फेक्शन ऑटोइम्यून डिजीज क्रिएट कर सकता है, मतलब कोई वैक्सीनेशन का भी एक कनेक्शन है.
कहीं वो भी ऑटोइम्यून डिजीज क्रिएट कर सकता है. एंड थर्ड थिंग वी कॉल इट स्ट्रेस. बट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रेस? सो सच काइंड ऑफ स्ट्रेस यूजुअली क्रिएट्स ऑटोइम्यून डिजीजेस. और इसमें फिर आप लेटर ऑन जाओ कि डिजीज को पर्टिकुलर समझो कि किसी को सपोज ऑटोइम्यून रिमोटॉइड आर्थराइटिस हुआ, तो वो ऑटोइम्यून रिमोटॉइड आर्थराइटिस होगा अलोंग विद दैट रेज और हेट्रेड फीलिंग के साथ डिवेल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट से. बिकॉज जो ऑर्गन मेजोडम से ओरिजिन होते हैं, मतलब एम्ब्रियोलॉजिकली जो हमारा ब्रॉटअप होता है वो 3 अलग अलग लेयर में से होता है. एक्टोडम बाहर का मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर, इनर लेयर मेजोडम एंड इनर मोस्ट इज एंडोडम. तो जो मसल्स है, बोन है, ब्लड वेसल्स है, ये सब चीज़ें मेजोडम में से बनती है. तो मेजोडम में डिवेल्यूएशन कॉन्फ्लिक्ट ही मेजोडम के ऑर्गन को अफेक्ट करेगा. तो लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन, बिकॉज वो तो हर डिजीज के लिए एक बहुत लंबा टॉपिक है. एक्सप्लेनेशन. हाँ, यस. बट सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? तो ये रेज, क्योंकि हेट हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो बॉडी वही इमोशंस परसीव करेगा और बॉडी उसी वे में बिहेव करेगा. So by making such kind of nuisance on road, accident, quarrelsome, dispute, वो तो होना ही होना है. बिकॉज सामने वाला उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी कहीं ना कहीं वैसा ही मिलने वाला है. क्योंकि वो भी बचपन से वही उसने जो कैरी किया होगा वो सामने रिएक्ट करेगा. तो वो तो जो नुकसान है ही है, मतलब. लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे भी ये इमोशंस का डीप इम्पैक्ट होता है. गवर्नमेंट और आम आदमी के बीच में एक पूरा चैनल होता है, कंसल्टेंट्स का, एक्सपर्ट्स का, अर्बन प्लानर्स का, आर्किटेक्ट्स का, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर्स का, जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को शेप अप करते हैं. हम उन्हीं एक्सपर्ट्स को आपके सामने ला रहे सीधा बात करने के लिए हमारे द बिजनेस एंड बियॉन्ड पॉडकास्ट के थ्रू. ये सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, ये इंडिया का सबसे पहला इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड पॉडकास्ट है. आप भी अगर इस इंडस्ट्री की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं और इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. इंडिया इज़ कंसिडर्ड द नंबर 1 country into diabetes right now, in topping the chart into diabetes. Every second person is diabetic right now, and sugar level 1 are out high. of 7, and this data is I am telling about probably 8 या 9 years before का data है. Yes. So 1 out of 7 people is diabetic right now into our country. You tell us why so in India? Oh. Why so? There are lot many factors: food habit, lifestyle, emotional trauma, DNA. Lot many things affect on the DNA, and the same way body is behaving. But as per German New Medicine, if you see, तो right-handed male में diabetes आएगा resistance. Okay. तो what is resistance? Resistance that means कि if you observe it कि किसी का वाणी वर्तन व्यवहार, कोई घटना परिस्थिति या तो सिचुएशन जो इंसान उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, जो एक्सेप्टेंस नहीं है वो सब रेजिस्टेंस है. Okay. तो जितना माइंड लेवल पे रेजिस्टेंस डेवलप होगा, या तो लुइस हे के लिटरेचर के हिसाब से इम्बिटरनेस, देयर इज नो स्वीटनेस इन लाइफ. तो जैसे इतने भी इम्बिटर एक्सपीरियंसेस बढ़ते जाएंगे लाइफ में, उसके हिसाब से पेरिफेरल रेजिस्टेंस डेवलप होगा. और टाइप 2 डायबिटीज जो है, दैट्स नॉट अ डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, बट इंसुलिन इज नॉट यूटिलाइजिंग बाय द एंड सेल. तो वो रेजिस्टेंस है, मतलब सेल ने अपना डोर क्लोज कर दिया है, आई एम नॉट गोइंग टू यूटिलाइज इट. तो वो माइंड का रेजिस्टेंस फिजिकल प्लेन पे मैनिफेस्ट होता है. ओके. सो डायबिटीज समझ सकती हूँ मैं, आपने जैसे बोला कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस. द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसीज विच वुमेन आर फेसिंग अ लॉट, विच आई वॉज अ पेशेंट ऑफ यू इन टू दैट केस, विच इज़ hypothyroidism. So which is also very common into women in India right now. What is the psychosomatic cause of hypothyroidism? I want to understand from you. Okay. In thyroid, we will differentiate in 2 parts: whether thyroid gland has been involved or not, or only at functional level it has affected. So in both cases, one thing is powerless conflict. What is powerless conflict? When any person जहाँ पे आप powerless feel करते, आपको लगता है कि आपके हाथ में कुछ है नहीं, और you feel victim. No, not about victim, but you feel कि over responsibility आ गई. अच्छा. How will I overcome it? तो मेजोरिटी ऑफ फीमेल को आप देखोगे तो आफ्टर मैरिज ही दे विल डायग्नोज हाइपोथायरॉइडिज्म. ओके. ओके, दैट इज आल्सो अ स्टडी कि आफ्टर मैरिज दे आर डायग्नोज्ड. मेजोरिटी ऑफ फीमेल विल गेट आफ्टर मैरिज. अदरवाइज इफ वुमन इज वर्किंग or office or at business level, if over responsibility and over task comes in, and when she feels whether I will be able to overcome it or not, that creates basically a hypothyroidism.
और होम्योपैथी में Recently- इसे कैसे क्योर करते हैं, आप अगर बता पाए? I had lot many patients. I am the one whose hypothyroidism is completely cured by Dr. Janak. My TSH level was detected 110. My T3, T4, both the hormones were imbalanced. And my own father, who is a allopathy practitioner, उन्होंने मुझे बोला कि आपको थायरोक्सिन की गोलियां लेनी पड़ेगी लाइफ लॉन्ग, आप इसमें से क्योर नहीं हो सकते. बट इट इज़ डॉक्टर जनक सिंधव जिन्होंने मुझे बोला कि बिफोर टेकिंग एलोपैथी मेडिसिन यू give a chance to the homeopathy medicine. I took his homeopathy medicine. I was diagnosed 10 years before, and today also, before 2 months I did a test. It is completely normal. My thyroid is completely normal. So I would like to give you credit for that, right? Thank Because you. it's a very big miracle in my life where my hypothyroidism has been cured. But I still want to know, how did you cure my thyroid? I need to check your case because it's a 10-year history. You know me. before history. No, I know, but at that time 10 साल पहले मैंने क्या लिखा वो तो केस में ही लिखा होगा. हाँ. And I don't think कि मैंने आपको 2 या 3 महीने से ज़्यादा दवाई दिया होगा. Only 3 months Only 3 medicines. months. Yes. So, but recently I had cured one interesting case of thyroid. The lady had given birth to the triplet. Okay. Okay, so she was not ready to take care of 3 children at a time. Okay. Okay, but the family situation was that everybody was happy with that triplets, and the mother perceived that I will be able to take care of these 3 children. That was the feeling in the That's mother. the feeling in the mother, and that feeling has created hypothyroidism in her pregnancy. Okay. True. So this is powerless. I want to say, see, universe, nature जो भी responsibility देता है वो हमारी ability और capability होती है, इसलिए universe देता है. Otherwise, it would not have been given to us. It would have been passed to other one. Okay. So take it easily. Everything is possible. It's so not acceptance is the solution Acceptance- to everything. everything. Yes, acceptance and surrender. Surrender to the situation. Surrender to the higher authority. Surrender to the higher consciousness. Surrender to the God, which gives, I think, a big relief. Big relief. Okay, but surrender को अगर हम सोचे ना डॉक्टर इन अ जनरल पीपल्स पर्सपेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, surrender को एक पावरलेस फीलिंग बोला जाता है कि when you surrender No. मतलब आप हार गए. Surrender is So, not in the. what is the right meaning of surrender? Surrender, that means not resignation. I mean to say, surrender means we have to put down our ego to the higher consciousness. Okay. This is not whole and soul which is doing I am only. So where I comes, that our ego comes. So we have to surrender that ego, not to the task, or we have to surrender to the our colleague or our sir or our boss or our superiority. It's not like that way. But surrender to the higher consciousness. That means surrender to the God, whatever you believe it. Surrender your ego. But Rest of the thing you have to do by own way. In a case of that mother who has got the triplet, आपने बोला कि उनको 3 बच्चे हुए, वो कैसे सरेंडर करे? Because she is full of responsibilities right now of 3 children. उसको मे बी उसको एक्सेप्ट करना है, उसको प्यार है बच्चों से, बट तीनों को एक साथ संभालना, तीनों को एक साथ ग्रो करना, वो सिचुएशन पे वो कैसे सरेंडर करे, कैसे एक्सेप्ट करे वो सिचुएशन को? See, majority of time क्या होता है, to raise a single child is very big challenge compared to raise a sibling, 2 children at a time. Okay. Majority of time kid take care of other kid. अच्छा. Okay. So ये यूनिवर्स का एक बेनिफिट है. मतलब आप बच्चे को अकेला नहीं रख सकते. 1-2 बच्चों को एक साथ में रख दोगे, भले वो झगड़ेंगे, मस्ती करेंगे, 10 मिनट के बाद भूल के वो खेलने भी लगेंगे, बट वो 3 घंटे 4 घंटे वैसे भी खेलने में निकाल देंगे. So it's not कि always we have to do everything. I understand your counseling point of view, but now you tell me how homeopathy medicine can help the people like this to accept the situation. वो कैसे help करेगा? नहीं, medicine will work on at cellular level, will work at emotional level. So after giving medicine, I had observed in thousands of patients such kind of acceptability, some kind of positiveness by nature through help of medicine it creates. Okay. So afterward, there is no any question of feeling that negative perception. Okay. Understood. So many patients ask me, does it possible to change the DNA? So today I am confident and I would say, yeah, it's possible to change the DNA even. You're making a big claim.
No, of changing a DNA? No, it's not a big claim. If you go through the literature of epigenetics, what Dr. Bruce Lipton, who is a retired medical professor of Stanford University, and what in biology of belief he had observed and what he had put in that literature, so DNA is not a fixed pattern. DNA is ever changing process. Okay. Our surrounding environment shapes our DNA. It's not Okay. only truth that what our ancestor had given to us and how our body's biological and physical function are. जनरल कंसेप्ट ऑफ डीएनए इज सच कि जो आपके एंसेस्टर्स ने पैटर्न्स लिए हैं वो पैटर्न्स वो डीएनए में स्टोर हो रहे हैं और वो डीएनए एक आगे की जनरेशन को ट्रांसफ़र हो रहा है, तो वो एक सर्टन टाइप ऑफ पैटर्न्स और बिहेवियर्स ही उनके चीज़ों में आएंगे. अब उसको आप बोल रहे हो कि उसको चेंज करना भी पॉसिबल है? नहीं, तो फिर आप देखो ना, तो दो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं तो दोनों का बिहेवियर एक जैसा थोड़ा होता है. ट्रू. एक ही पेरेंट्स है, एक ही मदर है, एक ही फादर है, दोनों के इंसिस्टर एक ही है, देन व्हाई बोथ टू सिबलिंग? You observe your sister. Yes. You both are not the same. Not the same. Even identical twins होंगे मतलब, तो वो लुक में एक जैसे दिखेंगे, लेकिन बिहेवियर में, थॉट प्रोसेस में तो वो अलग अलग ही होंगे. तो एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक. हाँ, देयर आर सर्टेन, नहीं, मेजोरिटी ऑफ डेटा पास ऑन थ्रू डीएनए, थ्रू आरएनए के थ्रू, मेमोरी के फॉर्म में वो पास ऑन होता है, बट दैट्स नॉट परमानेंट. यू नो Okay. what usually belief about the subconscious mind, when our subconscious mind program design. So it's very interesting to know it that when our mother was in the womb of our maternal grandmother, at that time our subconscious mind's first program gets designed. Okay. So at that time whatsoever our maternal, You mean to say when your mother was conceived, we were designed at that time? Yes. And how? So when our mother was in the womb of our maternal grandmother, in her ovary, in mother's ovary, there was a cell in form of precursor or meiotic cell. Okay. So वो ओवम by default वहाँ स्टोर होते हैं और वो ओवम वो डेटा परसीव कर रहे होते हैं. Okay. Second program gets designed when we were in the our womb of our mother. तो 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में मदर का जो भी मेंटल स्टेटस है, जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, जो भी कॉन्शियसनेस है, मतलब जो भी लोगों का वाणी वर्तन व्यवहार है, जो मदर फील कर रही है, जो परसीव कर रही है, उसके हिसाब से बच्चा 100% परसीव कर रहा है. बट इसके हिसाब से तो डॉक्टर बहुत सारे डिसीजेस के सीड्स हो सकते हैं जब बच्चा पैदा होता है, बट सारे डिसीजेस मैनिफेस्ट नहीं होते, सारे डिसीजेस उसमें दिखाई नहीं देते उसकी थ्रू आउट द लाइफ में इंसान की. ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्योंकि वो सेंसिटिविटी तो बाय बॉर्न कैरी करके आता है. जब वो सेंसिटिविटी हर्ट होगी उसकी लाइफ में, तब डिजीज मैनिफेस्ट होगा. ओके, सो देयर कम्स अ कांसेप्ट ऑफ साइकोसोमैटिक डिसीजेस. You will call it psychosomatic, but I would call it's a emotional trauma which brain stores in his memory, and later on whenever it get hurts it develops disease. Okay. See, तो कोई भी जो भी डिजीज की पैथोलॉजी है उसके हिसाब से इमोशनल ट्रॉमा होंगे. मतलब कोई एक छोटा सा इमोशनल ट्रॉमा कोई बड़ी बीमारी को डेवलप नहीं कर देगा, ठीक है, बट रिपीटेटिव ट्रॉमा जो है वो बड़ी बीमारी को क्रिएट कर सकता है. तो इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू अंडरस्टैंड इट कि एवरी चाइल्ड, मेजोरिटी ऑफ, नॉट एवरी, टेक्स बर्थ एज ए हेल्दी ह्यूमन बीइंग. Okay, and at very young age what kind of disease usually they will get it, whether cold, whether cough या लूज मोशन या तो स्किन रेसिस, ऑल आर द ऑर्गन ऑफ एक्टोडर्म. जो एम्ब्रियोलॉजिकली हम बात करें तो मतलब तो उस डिजीज को यदि हम नेचुरली ट्रीट नहीं करते और अननेचुरली उसको सप्रेस करते हैं, देन एंड देन दैट डिजीज विल ट्रैवल टू द नेक्स्ट मेसोडर्म. जो हमारे एक्टोडर्म बाहर का लेयर था, बीच का जो लेयर था वो मेसोडर्म, एम्ब्रियोलॉजिकली जो इवोल्यूशन होता है उसमें. देन वो मिडिल एज में या तो हाइपरटेंशन या तो थायराइड या तो कोई दूसरी कोई बीमारी या तो ओबेसिटी या तो कुछ ना कुछ मतलब वो डेवलप करेगा. उसी चीज़ को यदि नेचुरल वे से ट्रीट नहीं किया, अननेचुरल वे से सप्रेस किया, तो वही वो लेटर ऑन एंडोडर्म के किसी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा. फिर वो डायबिटीज आएगा, या तो कोई न्यूरोपैथी आएगा, या तो सर्वाइकल पेन आएगा, बैक पेन आएगा, न्यूरोपैथी के पेन आएंगे मतलब लेटर ऑन, या तो कोई अल्जाइमर आएगा, या तो पार्किंसन आएगा मतलब. तो डिजीज कोई डायरेक्टली कोई एंडोडर्म के ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है. डिजीज ऑलवेज ट्रैवल्स फ्रॉम एक्टोडर्म टू मेसोडर्म टू एंडोडर्म. तो ये डिजीज की जर्नी को समझना बहुत जरूरी होता है. तो डिजीज दो तरीके से सप्रेस होते हैं, या तो एक
अननेचुरल वे से ट्रीट करने से भी सप्रेस होते हैं, और सेकंड थिंग इमोशन से भी सप्रेस होते हैं. जो भी इमोशन सप्रेस होते हैं तो वो कहीं ना कहीं बॉडी में डेटा स्टोर होता ही है. देयर इज वेरी नाइस लिटरेचर जस्ट फ्यू वीक बिफोर आई हैड गॉन थ्रू इट. व्हेन द बॉडी सेज नो बाय गोबरमेट, तो व्हाट इट clearly says, mind always tries to forget the things, but body always keeps it record. Okay. मन So बोले- body has its own memory. You are body trying has to its say. own memory. So it's not only about the brain. Our gut, our neuron, our each and every cell has its own memory. Our every cell वो memory को store रखता है. When we try to aside the emotions like anger, rage, resentment, guilt, by putting down them like you are very polite, you are very positive, ऐसे करके हम साइड करने की कोशिश करते हैं, तब भी बॉडी वो इमोशंस का बर्डन तो लेके स्टोर करता ही है. Okay. एंड ओवर टाइम इट स्पीक्स थ्रू डिजीज, नॉट ऑन द स्पॉट. क्योंकि मैं आज पूछता हूँ किसी को, मतलब कुछ कंप्लेन लेके आया, मैंने पूछा क्या हुआ था आज, तो उन्हें नहीं 5 दिन में तो मेरे लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है. पर उसको पता नहीं है कि 20 दिन पहले क्या हुआ था, उसने बॉडी ने स्टोर करके रखा और वो आज मैनिफेस्ट कर रहा है. Okay. And disease, so always what I perceive is disease is not always an enemy which is attacking on us. It is body's honest response to year of emotional silencing. Okay. So I would like to say, आपने बोला कि every children is born healthy, but what about the children who are being born with Yeah. autism and thalassemia, right? So उनके लिए तो they are born with that. हाँ, तो 9 month ऑफ प्रेगनेंसी का मदर का हिस्ट्री समझो. Okay. तो वो इमोशनल ट्रॉमा वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट कि चाइल्ड वाज वेरी फ्रेजाइल, सो ही कुडंट हैंडल इट दैट ट्रॉमा. Okay. सो वो बीमारी मैनिफेस्ट कर ही देगा. Okay. Even any physical defect. Many children born children with gets any- with congenital heart disease, bone deformity, atresia of esophagus, cleft lip, cleft palate. Yes. Yes. So lot many by born condition. बट वहाँ आप देखोगे कि मदर का 9 month, उसमें भी इनिशियली 3 month, First trimester. first trimester is very important because anatomy is structuring at their time. Then physiology starts in second trimester, and by end of second trimester usually 99% human baby is ready. So in first 3 trimester, if you are saying they are very important अगर है, तो ऐसे कौन से इमोशंस मदर के सप्रेस होते हैं उस वक्त पे, ऐसे कैसे ट्रॉमाज होते हैं मदर के जो जिसकी वजह से ये बर्थ प्रॉब्लम्स होती है, या फिर द किड इज बोर्न विथ दिस काइंड ऑफ रेयर डिसीजेस. वो कौन से इमोशंस और कौन से ट्रॉमाज होते हैं? वो तो इंडिविजुअल डिजीज के अकॉर्डिंग वी आर फाइंडिंग इट आउट, बट यूजुअली सिचुएशन क्या होती है, तो अवर ऑलवेज फर्स्ट क्वेश्चन इज कि मैरिज के कितने समय के बाद फर्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव हुआ. दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. वेरी इंपॉर्टेंट. कई बार क्या होता है कि इमीडिएटली विद इन 1 month ऑफ मैरिज प्रेगनेंसी गेट कंसीव्ड एंड मदर इज नॉट मेंटली रेडी टू एक्सेप्ट दैट प्रेगनेंसी. ओके. तो बाय डिफॉल्ट वो बच्चे में निग्लेक्टेड भाव आ गया. देन व्हाट दे हैव डन फॉर 10 days 15 days, कई बार टाइम निकाल देते हैं मतलब डिसीजन लेने में कि उसको कंटिन्यू करना है या तो कंटिन्यू नहीं करना है. तो ये जो 15 days का जो इमोशनल ट्रॉमा रहता है, टर्मोइल, वो चाइल्ड इज परसीविंग एट दैट मोमेंट. ओके. सेकंड थिंग होता है घर में कोई डोमेस्टिक वायोलेंस है या नहीं, किसी का डोमिनेशन है या नहीं, घर में कितनी हार्मनी है या नहीं, कोई बहुत डोमिनेटिंग फादर इन लॉ होते हैं, हस्बैंड का कोई हैबिट ऐसा है जो अल्कोहलिक है, डोमेस्टिक वायोलेंस वाला है, तो वो सब इमोशनल ट्रॉमा बहुत मैटर करते हैं. फिर आसपास के फैमिली का बिहेवियर कैसा है वो बहुत मैटर करता है, बिकॉज बहुत मतलब हर प्रेगनेंसी हर केस इज़ वेरी डिफरेंट एंड वेरी यूनिक. मदर की आगे की लाइफ कैसी है, वो क्या सेंसिटिविटी कैरी करके आई है, मतलब कई बार फर्स्ट मैरिज है या सेकंड मैरिज है, कई बार ऐसा भी होता है कि सेकंड मैरिज है, आगे का जो इमोशनल ट्रॉमा होता है वो अभी भी माइंड में चलता रहता है. मैनी केसेस में क्या होता है कि सपोज किड जो पेशेंट है वो सेकंड प्रेगनेंसी है, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी की हिस्ट्री क्या थी, कोई मिसकैरेज हुआ, कोई अबॉर्ट करवाना पड़ा, या तो कोई मेडिकल कोई कंडीशन की वजह से अबॉर्ट करवाना पड़ा, या तो स्पॉन्टेनियस मिसकैरेज हुआ, तो मदर को बाय डिफ़ॉल्ट वो फियर रहता है नेक्स्ट प्रेगनेंसी में. क्योंकि पहले ये मिसकैरेज हुआ था तो ये भी मिसकैरेज ना हो जाए. Okay, so that fear also manifests into disease in the kid. Fear is one of the worst emotions. Anger से भी ज़्यादा बड़ा emotions fear है. क्योंकि fear जितना पैथोलॉजी क्रिएट कर सकता है वो anger से भी ज़्यादा है. Even it can distort
इनहेलेशन तक, मतलब गायब भी कर सकता है फियर ऑर्गन को। बात कर रहे हैं। तो ये तो अब मतलब नेचुरली एक नेचर के साथ कनेक्ट होके यदि हम चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तब ये सब चीज़ें एक दूसरे से मतलब कड़ियाँ जुड़ती है। फियर आपने बोला बिकॉज दिस स्टेट इज़ वेरी कॉमन। अभी सब लोग बहुत डर में जी रहे हैं, माहौल भी इतना है, एक तरफ वॉर्स हो रही है इतनी दुनिया में, पीपल आर स्केप्टिकल अबाउट कि ये न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो सकता है या वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ LPG गैस राइट नाउ। बहुत सारी चीज़ों के फियर्स क्रिएट कर रहा है अभी। सो आपको लगता है कि इसका एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे और कलेक्टिवली पीपल के माइंडसेट पे अभी असर पड़ने वाला है? बिकॉज आवर जनरेशन हैज सीन अ कोरोना एंड देन नाउ वी आर सीइंग द वॉर सिचुएशंस इन जस्ट 6 years. कोविड में भी क्या हुआ, जितने नेचुरली कोविड की वजह से डेथ हुई उससे ज़्यादा तो मुझे लगता है कि फियर की वजह से हुई है। ओके। क्योंकि जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऐसा बन जाता है तो बहुत ही फ्यू पीपल हु आर वेरी स्थित प्रज्ञ स्थिति में है या तो बहुत ही पॉजिटिव है, स्टेबल है अपने आप में, वही लोग उन सब सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। ओके। अदरवाइज अभी क्या है, सी सेम क्वेश्चन माय मॉम टोल्ड मी यस्टरडे कि शॉर्टेज ऑफ LPG गैस है, ठीक है, बट आई हैड नॉट सीन इन न्यूज़पेपर, आई हैड नॉट सीन इन एनी टेलीविजन, सो आई वाज नॉट अवेयर अबाउट इट। तो वो फियर मेरे मन में था ही नहीं, बिकॉज यू वर नॉट नोइंग, बिकॉज आई हैड नॉट सीन इट ना, एंड नाउ यू आर टेलिंग मी अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जैसे हम बातें करते हैं तो वर्ड्स आर नॉट ऑलवेज ओनली वर्ड्स, इट ऑलवेज ट्रैवल लॉट मेनी डिस्टेंस, इवन टेंस ऑफ 100,000 माइल्स। तो वर्ड भी एक एनर्जी है, तो एनर्जी ट्रैवल करती ही है और वो पूरा कॉन्शियसनेस ऐसे डिजाइन होता है। फिर आप नोइंगली और अननोइंगली उसका विक्टिम बनोगे ही बनोगे। तो हमने जैसे कोविड देखा, हम अभी कोविड पे आ रहे हैं, तो हमने कोविड देखा, आपने बोला कि बहुत सारी डेथ्स बिकॉज ऑफ कोविड हुई है। सो वो कैसे हुई है? मतलब उसके फियर से हुई है, नॉट बिकॉज ऑफ द कोविड वायरस बट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ, बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ गेटिंग एडमिशन। तो आप जर्मन न्यू मेडिसिन पढ़ोगे, जर्मन न्यू मेडिसिन डॉक्टर ग्रीक हैमर का, दैट फेलो इज टोल्ड वेरी प्रिसाइजली, डेथ, फ्राइट, कॉन्फ्लिक्ट ऑलवेज अफेक्ट द लंग्स। ओके। और कोविड में क्या हुआ, आई हैड सीन लॉट मेनी पेशेंट कि जो हॉस्पिटल में गए तब उनका सैचुरेशन बहुत नॉर्मल था, अबव 92 93 से प्लस था, ऑक्सीजन लेवल वाज रूम एयर विदाउट एनी ऑक्सीजन सपोर्ट। जैसे एडमिट हुए विदिन 12 आवर में उनका ऑक्सीजन ड्रॉप डाउन हुआ, आई हैव सीन इट, एंड विदिन 12 to 24 आवर उनको बाईपेप से वेंटिलेटर पे लगाने की जरूरत पड़ेगी। लॉट मेनी पेशेंट आई हैड सीन। तो वो क्या था, वो थ्रेट ही था जिसने बॉडी को इतना वीक बना दिया, इतना डिटोरिएट करने के लिए मजबूर बना दिया। यदि वो फियर नहीं होता तो बहुत सारे लोग वर्स्ट कंडीशन में से भी बाहर निकले थे। ओके। तो फियर का तो डायरेक्टली लिंक था लंग्स को इन्फिल्ट्रेट करने में, लंग को ज़्यादा वीक बनाने में और लंग को ज़्यादा इन्वॉल्व होने में। बट डॉक्टर, हमने फियरफुल सिचुएशंस पहले भी देखी है दुनिया ने, व्हेन इफ यू सी, गुजरात ने देखा हुआ है, अर्थक्वेक देखा हुआ है, अर्थक्वेक था, उससे पहले भी प्लेग था, सूरत में था, तो तब इतनी डेथ्स नहीं हुई थी, माइट भी इतना डेटा अवेलेबल नहीं था। अच्छा, सो आपको लगता है कि और डराने के लिए भी इतने मीडिया भी अवेलेबल नहीं थे। अच्छा, ओके। सो आपको लगता है कि कोविड की डेथ का मेन रीजन फियर है? या आई एम श्योर। यू आर श्योर? क्योंकि किसी ने न्यूज़ में देखा कि किसी की डेथ हो गई, किसी के सिबलिंग की डेथ हो गई, किसी के रिलेटिव्स की डेथ हो गई, कोई हॉस्पिटल में एडमिट और पास वाले बेड में किसी पेशेंट की डेथ हो गई, तो आप सोचे ना कि वो इंसान ऑलरेडी एक डर के वहाँ एडमिट हुआ है, उसके माइंड पे क्या इम्पेक्ट आएगा। तो और फिर आइसोलेशन के प्रोटोकॉल के हिसाब से रिलेटिव को मिलने नहीं दिया जाता है। ट्रू। तो आई हैड सीन वन वीडियो ऑफ वन MD फिजिशियन डॉक्टर हु वाज एडमिटेड इन दिल्ली। उनको खुद को कोविड हुआ था और उन्होंने ये कन्फेस किया था कि हियर पीपल आर डाइंग नॉट बिकॉज ऑफ कोविड बट बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड फियर। नो वन इज हियर टू टॉक विथ ईच अदर। यहाँ कोई 5 दिन से, 3 दिन से, कोई 10 दिन से एडमिट है, कोई किसी से बात करने के लिए रेडी नहीं है। तो हाउ दैट लोनलीनेस हैज क्रिएटेड दैट इमोशनल ट्रॉमा, और लोगों को एक लाइफ से डेथ की तरफ खींच के चले गए, तो ये तो कौन ऑब्जर्व करता है? हाउ द डॉक्टर्स हैव सीन द डेथ्स इनटू देयर करियर, लाइक many times, right? So
डॉक्टर कैसे उस फियर को ओवरकम नहीं कर पाए, दोज डॉक्टर्स इंक्लूडिंग माय फादर हु डाइड इन कोविड. सो आपको लगता है कि दोज डॉक्टर्स हु हैव सीन द डेथ सो मेनी टाइम्स, इफ माय फादर डाइड आउट ऑफ द कोविड, उन्होंने भी डेथ देखे बहुत सारे पेशेंट्स को हैंडल करने के बाद, बट जब उनको कोविड हुआ तो आपको लगता है कि तब उनका वो साइकोलॉजी डील नहीं कर पाया उस डर से? Definitely. Do you think so? Definitely, because after seeing the multiple death in hospital, But I can understand a normal person who is not a medical practitioner, but how a medical practitioner can get that fear a lot? by acceptance. See, death is inevitable. Death तो होना ही है. It's not in our hand. Life and death is predefined things by universe and higher consciousness. So death is not something like we can avoid it. True. See, so what I had learned in 9th grade, because in one competition I had won one literature of Vinod Bhave, who was very disciple of Mahatma Gandhi ji. और in that literature उन्होंने लिखा हुआ था कि one single breath is our life. Okay. One, we are knowing about, I am inhaling. That is my life. I don't know about my exhalation. Okay. तो यदि हम उस मोमेंट में जीना सीखते हैं कि मैंने एक जो ब्रीथ लिया, एक इनहेल किया, वही मेरी लाइफ है, उसके आगे पीछे मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, तो वो फियर नहीं रहेगा. But फिर भी again I'm coming to that point of doctor psychology. Being a doctor, how can you get fearful of a death at that time? Because many doctors died. मैंने IMA का डेटा देखा है उस वक्त कोविड में. There were many doctors, Indian Medical Association. इतने सारे doctors who have died, medical workers who have died in the COVID. All out of the fear, do you think so? Yes. Because every डॉक्टर का आप डेटा चेक करो, उनका लाइफ कैरियर का, उनकी मदर की लाइफ की जर्नी कैसी थी, उनकी सेंसिटिविटी क्या थी, उनकी कोमोर्बिडिटी क्या थी, वो भी मैटर करता है कि कोई डायबिटिक थे या नहीं, कोई ओवरवेट थे या नहीं, किसी को पास्ट में कोई लंग ट्यूबरक्लोसिस, न्यूमोनिया ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, कोई दूसरी मेडिकेशन पे हार्ट या किडनी या तो लीवर कोई कॉम्प्रोमाइज़ था या नहीं. तो ये सब तो चीज़ें मैटर करती है इंडिविजुअली. बट अलोंग विद दैट, यदि हम हर एक की इंडिविजुअल लाइफ की जर्नी समझेंगे, देन वी विल एबल टू फाइंड इट आउट. बट आई एम श्योर विदाउट फियर, सी फियर इज नॉट लाइक कि नहीं होगा. फियर तो हर किसी में है. बिकॉज हमारी जो लाइफ इवॉल्व हुई है उसको हम समझे, तो अर्थ की लाइफ समझे, मतलब समुद्र की लाइफ को भूल जाए हम, तो अर्थ में सबसे पहले क्या है? रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स, उसके बाद मैमल्स आए, और उसके बाद ह्यूमंस का बर्थ हुआ. तो रेप्टाइल्स का इमोशंस क्या होता है? फियर. Okay. Any reptile out of fear, whether attack or out of fear, they will escape. True. ठीक है, उनमें कोई मेमोरी नहीं है. That's why फीमेल स्नेक अपने बच्चे को बॉर्न देने के बाद वो खा जाते हैं, बिकॉज उसको याद ही नहीं है ना कि ये मेरा बच्चा है. अच्छा. बिकॉज मेमोरी इज नॉट इन रेप्टाइल्स. ओके. सो ओनली वन इमोशंस रेप्टाइल्स हैव इज फियर. तो हमारा जो बेसिक ब्रेन है, ब्रेन स्टेम है, ओल्ड ब्रेन है, उसको हम रेप्टाइलियन ब्रेन बोलते हैं. ओके. फिर लाइफ इवॉल्व होके मेमल्स के फॉर्म में आई. ओके, इट हैज टेकन मल्टी बिलियन ईयर्स. तो वो मैमल्स में जैसे जैसे आए, तो जो बेसिक इमोशंस था फियर, वो तो है ही. उसके ऊपर बेस हुआ एंगर, हेट्रेड, रिवेंज, जेलसी, कॉम्पिटिटिवनेस, सर्वाइवल के लिए. तो वो सब उसके ऊपर बेस्ड हुए इमोशंस है. ठीक है. तो एनिमल में, मैमल्स में मेमोरी है. आपने गाय को घास खाने के लिए छोड़ दिया तो शाम को वो अपने मालिक के घर ही आएगी, बिकॉज दैट रिमेंबर दैट पाथ. ठीक है. को कितने भी कैट को आप देख लो, लायन को देख लो, तो अपने बच्चे को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको फीडिंग करवाएंगे, मतलब ठीक है, अपनी टेरिटरी का उनको ध्यान रहता है कि ये मेरी टेरिटरी है, दूसरों की टेरिटरी नहीं है. तो उनमें वो पार्ट है. और उसके बाद ह्यूमंस का बॉर्न हुआ. तो ह्यूमंस में क्या अलोंग विद दैट डेवलप हुआ? ब्रेन स्टेम, बेसिक रेप्टाइलियन ब्रेन, हिंड ब्रेन दैट इज मैमलियन ब्रेन, और फ्रंटल कॉर्टेक्स. तो जो ह्यूमन ब्रेन है उसमें अलोंग विद दिस, ये फियर, एंगर, जब इमोशंस के साथ आया लॉजिक, आर्ट, कैलकुलेशन, मैथमेटिक्स. तो ये सब हमारे फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन का वर्क है, अलोंग विद दैट ऑल इमोशंस. ठीक है. तो हर कोई आपने कभी ऑब्जर्व किया? एक सिंपल चीज मैं बोलता हूँ कि कोई इंसान बहुत गुस्से में है, आप उसको समझाने की कोशिश करो तो वो क्यों नहीं समझता है? नहीं, they will not understand. They just want to, like, you know, exhale that thing, whichever is suppressing. तो जो एंगर है, दैट मीन्स कि वो जो एनिमल वाला ब्रेन है वो एक्टिव है. ओके.
और लॉजिक So, वो कहाँ उसका आएगा? ह्यूमन माइंड और ह्यूमन बिहेवियर पैटर्न वो सबसाइड हो गया है, अभी वो एनिमल इंस्टिंक्ट उसका एनिमल जाग इंस्टिंक्ट गया उसका चल रहा है। है। ओके ओके। तो लॉजिक वाला पार्ट ह्यूमन ब्रेन में फ्रंटल कॉर्टेक्स में है। हम्म तो बहुत वेरी फ्यू पीपल हु हैड लर्न दिस टेक्निक कि दोनों ब्रेन को कैसे यूटिलाइज किया जाए, ओके। बट मेजोरिटी ऑफ पीपल हैड नॉट लर्न दैट टेक्निक कि हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन। तो ओके। जो कोई फियर में होगा, कोई पैनिक में होगा, आप उसको कितना भी काउंसलिंग करो, दैट फेलो इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, क्योंकि फियर इज रेप्टिलियन ब्रेन का वो पार्ट है। यू गॉट इट? ओके तो जो लॉजिक और एनालिसिस जो है कि वो सेंस कि ये राइट या रॉन्ग है, वो तो फ्रंटल कॉर्टेक्स काम करता है, बट वो तो उसका एक्टिव है ही नहीं। ओके। सो व्हेन देयर इज एन एंगर, आप जब एंगर इमोशंस फील करते हो तब आप वो ह्यूमन इंस्टिंक्ट वाला पार्ट अपना शट डाउन कर शट देते डाउन हो। कर देते हो। ओके, दैट कैन ऑल्सो बी मतलब हमारा वो जो आपने बोला कि जो ह्यूमन इंस्टिंक्ट वाला पार्ट है वो क्या इंटॉक्सिकेशंस की वजह से, जैसे ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करना या कोई ऐसे ड्रग्स कंज्यूम ड्रग्स करना, उसकी कंज्यूम वजह करना, से भी हो सकता है? डेफिनेटली वो तो सब एग्जैगरेटिंग फैक्टर है ही, ओके क्योंकि वो अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ह्यूमंस की जो सेंसिटिविटी है, वो सेंसिटिविटी को वो नम कर देगा। ओके तो ह्यूमन सेंसिटिविटी नम होगी तो ऑब्वियसली जो पीछे वाले इमोशंस है वो हावी होंगे ही होंगे। ओके। सो वो जो नम्बनेस वाला आपने एक चीज़ बोला, तो शायद आई सी अ नम्बनेस प्रॉब्लम इनटू सो मच ऑफ यंग पीपल राइट नाउ, दे आर डिसेंसिटाइज्ड विद द ह्यूमन इमोशंस। आज मैं यंगर जनरेशन को जैसे देखती हूँ और आगे भी यंगर जनरेशन आती जा रही है, शायद आवर जनरेशन वाज मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स द अदर ह्यूमंस, बट अभी की जो जनरेशन आ रही है ना वो बहुत डिसेंसिटाइज्ड है। वो क्यों हो रहा है? वाई जनरेशन टू जनरेशन डिसेंसिटाइजेशन होता जा रहा है? बिकॉज what we are feeding through the media, बेसिक थिंग वो भी है। what kind of games our kids are playing, whether free fire हो या तो PUBG हो या तो any kind of which are very destructive mindset। तो उनके लिए एक परसेप्शन क्या बन गया है कि किसी सामने वाले बंदे को मारना इज नॉट अ बिग थिंग, बिकॉज ओके हाँ 6 मंथ 8 मंथ 1 ईयर वो बच्चा वही गेम खेल रहा है, तो वो डिस्ट्रक्टिवनेस बाय डिफॉल्ट उसके सबकॉन्शियस माइंड का प्रोग्राम बन जाएगा कहीं ना कहीं। तो व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट वी आर फीडिंग टू अवर kids and our children and this generation, that plays a big role. ओके। सो ये जो लाइक यू नो द गेम्स और टीवी दे दिया हाथ में, मोबाइल दे दिया, ये एक ह्यूमन बिहेवियर को भी रिस्ट्रिक्ट कर रहा है राइट? हाँ, क्योंकि वो obviously. ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट भूल चुके हैं। We are not connecting even with ourselves ना। How many people are spending 1 hour a day with themselves? ओके, विदाउट द मोबाइल, without any distraction? Very few people ना। व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट टू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ? We are not a different entity from this nature. We Okay. are part of this nature. And majority of people think we are superior to this nature, but it's not It's a true. myth. It's a myth. We will be able to survive only by staying with the nature. ओके ठीक है? So जब तक हम अपने आप से कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जितना मतलब आउटर वर्ल्ड है उतना ही हमारे अंदर का वर्ल्ड है, but we have not observed it, we have not traveled through it, we had not tried to sense it. और मैं एक बहुत बेसिक डिफरेंस चेक करता हूँ, तो हमारे यहाँ जितने भी ऋषि मुनि थे उन्होंने क्या किया, खुद को एनालिसिस किया, और जो भी सो कॉल्ड वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने क्या किया, उन्होंने आउटर वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया। ओके तो दैट्स व्हाई मटेरियलिस्टिकली दे हैव ग्रोन लाइक हायर साइड, बट स्पिरिचुअली या तो बाय ह्यूमन सेंसिटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू दे हैड नॉट येट डेवलप्ड सो हाई। एक बहुत बड़ा फैक्टर जब आप वेस्टर्न कंट्रीज का बोलते हैं ना, तो कंसिडरिंग द अमेरिका विच इज लाइक राइट नाउ यू नो इनिशिएटिंग ऑल द वॉर्स, and America has been doing it since decades. America is initiating the war and weapons का उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। तो आपको ये लगता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड और वेस्टर्न कल्चर में उनको एक ग्रीड वाला फैक्टर बहुत ज़्यादा दिया गया है आपको, और दैट इज़ द फैक्टर ऑफ अ ग्रीड विच इज़ रिजल्टिंग इनटू यू नो अमेरिकन्स जो इनिशिएट कर रहे हैं वॉर्स को या फिर ज़्यादा टेरिटरी ऑक्यूपाई करने को? एक अच्छा एग्जांपल दूँ, पोल्यूशन के रिगार्डिंग ही है कि what are the biggest thing to reduce the pollution? Public transportation. In US you will not find any kind of major public transportation. Okay. Why? Because in Second World War majority of army vehicles was provided by Ford company. Okay. And company has forced government to develop the roads.
not the public transportation. Okay. So by forcing the government has developed the roads so then they can sell their cars more and more. Okay, so it was purely a commercial. So the commercial motive, and there was force not to develop public transportation. Okay, that is the first time I'm hearing from someone that So this fundamental it's was. a very fundamental clear. And even today you will see there are roads are very clear, very long and very fine. Yes, But there is yes. no any public transportation. Yes, and many other viewers who are also visiting US will understand this thing. हाँ, ये चीज किसी ने ऑब्जर्व नहीं की कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन इतना नहीं है. Because True, of this very only true. one big automobile company. Okay, right. So Western had always been remain greedy. Even right now, if we see the whatsoever I know, why USA is attacking Iran? What is the motive? Motive is not clear, but it's ego. The hidden motive, everybody knows they want oil, more and more oil sources. Oil sources, because energy is the only thing which every nation need now. Because AI is also consuming more energy. You know, Energies, right now yes. what we are consuming. So oil is one visible motive, but don't know later on how much oil they will get it. Because its geography is very different than you know Yeah, exactly. other country. Second thing is they have fear of losing their position. Yes. Very big thing. Yes. Because China is growing like anything. Yes. And China and Russia are emerging as a superpowers right now. Yes, a superpower, and they don't want to make India as a third China. Yes, true. That's why, as my logic, they are not going to support India at any way. Yes, they are not. We have to find out our solution, our problem, and our solution. Our solution can't be made by Westerns. See, our Prime Minister is very focused about this thing. Okay, these are our problems, and we have to focus on that, other than copying the things from Westerns. Yes. Okay, I understand this part. Now coming to the war part again, as we have said, that America is in so much of greed. Do you think that this can result into nuclear war tomorrow? Doctor? Personally, I think no. Because there is one study right now and one data which has been shown कि जो Gulf countries हैं उन्होंने ऐसी फार्मास्यूटिकल कंपनीज को ऑर्डर दिया है जो ड्रग मैन्युफैक्चर करती है, जो न्यूक्लियर जो भी रिएक्टिवनेस है वो जो एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर उसकी असर को कम करता है. सो वैसी ड्रग कंपनीज को उन्होंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर दिए हुए हैं. तो शायद ये एक साइन है कि न्यूक्लियर वर्ल्ड वॉर हो सकता है. अभी तो पर्सनली मुझे नहीं लगता है, बट शायद उनकी कॉन्शियसनेस उसको अट्रैक्ट कर ले. बिकॉज़ जो फियर में आप रहोगे तो वो फियर तो आप अट्रैक्ट करोगे आपको, तो शायद वो चीज़ हो सकती है. ओके, बट न्यूक्लियर की अगर हम बात करें तो अगर न्यूक्लियर रेडिएशन है तो वो बॉडी पे कैसे इफेक्ट करता है? आप हिरोशिमा या तो नागासाकी का स्टडी करो तो देन यू विल रियलाइज इट कि एक तो इमीडिएट इफेक्ट है कि जो भी डायरेक्ट कांटेक्ट में आए तो समझो मल्टी ऑर्गन फेल करके वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट तो आई अंडरस्टैंड दैट नोबडी इज गोइंग टू सर्वाइव इट, वो तो पूरा डिसॉल्व कर देगा बॉडी को. जो रिमोटली कांटेक्ट में आए, मतलब रिमोटली कांटेक्ट में आए, दे विल आल्सो गोइंग टू अफेक्ट विद कैंसर. मैं वही बोलना चाहती हूँ कि जो पैसिवली या फिर बहुत दूर आए जिन्होंने एब्जॉर्ब किया है, जितने भी गामा रेज है या तो जितने भी रेडिएशन के रेज है वो डीएनए को भी अल्टर करते हैं. तो अनुवांशिक जो बीमारी बोलते हैं या तो जो मतलब कंजेनिटल डिफॉर्मिटी जो बोलते हैं वो आने के नेक्स्ट जनरेशन में चांसेस बहुत हाई रहते हैं. जो करंट लाइफ है उनमें भी बहुत सारे कैंसर जैसे बीमारी होने के चांसेस हाई है. तो वो तो बहुत अनइमेजिनेबल मतलब इम्पैक्ट है. होम्योपैथी में ऐसा कोई प्रिवेंटिव क्योर है जिससे न्यूक्लियर रेडिएशन की असर को शायद कम किया जा सके? प्रिवेंटिव मेडिसिन है ऐसी कोई? प्रिवेंटिव मेडिसिन रेडियम ब्रोम करके एक हमारे पास मेडिसिन है. ऐसे डायरेक्टली मैं लेने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि हमारा पूरा कंसेप्ट तो इंडिविजुअलाइजेशन का ही है, इंडिविजुअल. लेकिन ऐसे केसेस में जो भी रेडिएशन का एक्सपोजर जितने भी लोगों को होता है उनको 20-25% को कॉमनली स्टडी किया जाता है और उस 20-25% में जो कॉमन सिम्टम्स आते हैं उसके हिसाब से एक मेडिसिन सिलेक्ट किया जाता है. तो उसको एज ए प्रोफाइलेक्सिस या तो एज ए क्यूरेटिव मेडिसिन वी कैन यूज इट. बट
I don't want to say about it because I don't personally want it. Want this ठीक to है, happen? हम I वो प्रे नहीं understand that. करेंगे कि इसकी जरूरत पड़े या तो कोई भी No, I just want people to come out of the fear right now because हाँ. they are in fear of so much of nuclear war right now. कि nuclear radiation के effects से सब everybody knows about the nuclear. But I want people to know that there are preventive medicines into homeopathy, and there are the medicine which can cure maybe the radiation Yeah. which you have observed in Yeah, the definitely, body. definitely. If I say so, in homeopathy, these medicines are available. Medicine will definitely help. Not to the we can say right now to the 100%, but at least at optimum level, medicine will definitely help. If exposure of radiation is too strong or too high, then constitution itself has not that ability to react to the medicine. तो वो ससेप्टिबिलिटी यदि खत्म हो जाती है तो फिर वहाँ मेडिसिन हेल्प नहीं करेगा. लेकिन इफ एनी कंस्टिट्यूशन हैज लिटिल बिट इवन सेंसिटिविटी तो वो मेडिसिन डेफिनेटली हेल्प करेगा. That was a very insightful session with you, doctor, and we will have another session also. I would love to have another session because Yeah. मेरे question card में शायद मैं 2 ही कार्ड को use कर पाई, बाकी सारे questions रह गए मेरे. So, but I would like to end this session with a rapid fire, right? Yes. So this is a very interesting segment which my viewers watch, Okay. right? तो आपको जो भी आपके दिमाग में आए मेरे क्वेश्चन का आंसर देना है. Not you don't have much time to think about that, right? So my first question is homeopathy या allopathy? होम्योपैथी. Okay. Modern lifestyle disease का biggest cause pollution या stress? बोथ. Okay. COVID pandemic natural virus या lab leak possibility? लैब लीक पॉसिबिलिटी. Okay. You want to say it was man-made? यस. Okay. Lockdowns. Do you think it was necessary or it was overreaction? was necessary. Okay. Long COVID, physical problems या mostly mental impact? Both, but more mental and the physical. Lot many patients are having cardiac arrest. Very young people are having cardiac arrest. Lot many memory issue I am facing post COVID. So both mental and physical. Okay. Cancer cases बढ़ने का biggest reason आपको क्या लगता है? Lifestyle, pollution या genetics? Majorly genetic, pollution and lifestyle तीनों है, but first is genetics, second is pollution, second is I will say lifestyle, emotional trauma and third is pollution. Okay. एयर पोल्यूशन को आप कैसे डिफाइन करोगे? साइलेंट किलर है या ओवर हाइप्ड कर दिया हमने एयर No, पोल्यूशन? silent killer because normal AQI we need to breathe is 0 to 50. Ahmedabad's AQI is average 150. What are you saying? Delhi's Yeah. AQI is around 200. My God. Sorry, 280. Maybe more than that, 300. 280 to 300, yes. न्यूक्लियर रेडिएशन एक्सपोजर मेडिसिन हेल्प कर सकता है या इम्पॉसिबल टू ट्रीट? हेल्प कर सकता है. Not all cases, but few cases. फ्यूचर में दुनिया के लिए बड़ा हेल्थ थ्रेट पॉल्यूशन या न्यू पैंडेमिक? Pollution. इज देयर एनी चांस ऑफ कमिंग न्यू पैंडेमिक इनटू फ्यूचर? डू यू थिंक सो? Yes. ह्यूमन हेल्थ को सबसे ज्यादा डैमेज करने वाली चीज जंक फूड, स्ट्रेस या पोल्यूशन? Stress. That was my super rapid fire with you, doctor. Thank you. And we would like to conclude this session. I hope my viewers like this session. I'll keep you posted regarding Dr. Janak Sindhav's clinics, all details in my caption. अगर आप चाहे तो उनके अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं. बहुत सारे डिसीज़ में उनसे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, बहुत ही अच्छा क्योर मिला है, जो मुझे खुद पर्सनली मैं रेकमेंड करती हूँ डॉक्टर जनक सिंधव्स होम्योपैथी क्लिनिक, बिकॉज rather than going for lifelong medicine you should give homeopathy a try. So मैं सारी डिटेल्स कैप्शन में डाल देती हूँ. आप you can just go and विजिट द क्लिनिक. आप उनके रिव्यूज़ भी गूगल पे पढ़ सकते हो. एंड आपको अगर हमारा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा है प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब आवर पॉडकास्ट. सो हम ऐसे पॉडकास्ट आपके लिए लाते रहे. थैंक यू.